Hello everyone, this is NCERT Class 5 EVS Chapter number 9 Up You Go Part 2. In this video, we will start from page number 79. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type a hook in it. हमारे इंस्ट्रक्टर मीन्स जो हमें कैंपिंग के लिए गाइड कर रहे थे, उन्होंने कमर पर रस्सी बांधी और उसमें स्लिंग जो एक तरीके का हुक होता है वो डाला. He then put the sling on the thick rope tied across the river. और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला. Walking through the icy water, he went to the other side. बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के दूसरे पार पहुंच गए थे. No one was ready to step into the fast flowing water of the river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line hoping that no one would see me. उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था. सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे और मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई. Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. तभी इंस्ट्रक्टर जो थे वो हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए. मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई थी. बचाव का कोई भी रास्ता नहीं था. मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी. Sir could guess my fears. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta madam, and before I knew it, someone had gently pushed me into the water. सर मेरे मन की हालत को समझ पा रहे थे. वे जोर से बोले, 3 cheers for संगीता मैडम, और इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया. I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. मुझे लगा मेरे पैर सुन्न हो गए हैं. मैं कांपने लगी और किट किट की आवाज़ मेरे दांतों से निकलने लगी. I caught hold the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. मैं रस्सा पकड़कर पैर को जमाते हुए चल रही थी और किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया था. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया. मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी. I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope of the sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. मुझे लगा अब तो बस बह ही जाऊंगी, पर नहीं. मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई थी, पानी पर खड़ी थी. रस्सा पकड़ो की आवाज़ें अब मुझे सुनाई दी. I somehow managed to get hold the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the water. फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया. धीरे धीरे हिम्मत जुटाती हुई आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई और नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ. Happiness on finishing a challenging task. Now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. मुझे खुशी थी एक जोखिम भरा काम कर पाने की.
अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी अपने साहस दिखा पाने का। नेक्स्ट है हमारा रॉक क्लाइंबिंग, मीन्स चट्टानों पर चढ़ना। We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wing titter, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंग चिटर, जैकेट मीन्स और सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with bags and drops. हम वहाँ पर फल और सब्जियाँ जो उगी थी उन्हें देख पा रहे थे, और जो कि एक सीढ़ीदार खेतों में उगी हुई थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सी के साथ खड़े थे। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। वो बता रहे हैं कि आज मेरा मन पीछे हटने को बिल्कुल नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was swinging from the rope. तभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने, जो हमें गाइड कर रहे थे, उन्होंने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. I heard, keep your back straight, do not bend. 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। Keep this in mind. I imagined the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापसी उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक निडर होकर चट्टान से नीचे उतर खड़ी हुई। एक यहाँ पर बहुत ही फनी इंसिडेंट भी हुआ। इन द इवनिंग खंदोनबी was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. शाम हो चली थी। खंदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म हो गया था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारों को पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। Just then a woman came from behind and caught hold of her
bag, she started saying something to Khandonbi in her own language. We could not understand what she was saying. तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खंदोनबी को कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही थी, हमारी समझ से बाहर थी। खंदोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. खंदोनबी बीच बीच में मिज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर फिर मैंने हाथ जोड़कर उस महिला को समझाया और गलती मानी। By then our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। I tightly hold Khandonbi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. मैंने खंदोनबी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और मैं ज़ोर से आवाज़ लगाई, "कहाँ हो तुम सब?" पहाड़ों में मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हम ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाने लगे और टॉर्च से रोशनी दिखाने लगे। Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। वापसी सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे। खंदोनबी फेल्ट that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time we saw them coming towards us. At last we were with the group again. खंदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारे जान में जान आई। So here is the end of part 2 of this chapter. Thank you and have a nice day.